Okay, students, Kalpana teacher here. Now, today we are going to start the second lesson of Maths paper 2, that is the parallel lines. Okay, so let us turn some points here. Properties of angle formed by test of parallel lines and all these things. Now, first of all, what is the parallel lines? Here is the definition of parallel lines. That is the line which are coplanar and do not intersect each other are called parallel lines. So this is the definition of line. Look at the lines. These are coplanar. These are not intersect to each other. That is called as parallel lines. Okay, so these are the parallel lines. Now next is what? Here there is activity. The stick is there and window bars are there. If we place it horizontal, this what will happen? This is the intersection is there, how many angles are formed and all the things here. So this is the activity, but you know that here is the these are the lines where this is called as transversal. Okay, when the two lines intersected by one line, so this is called, the line N is called as transversal. So this is the line which intersect the two lines. These are the two lines, that is the line L and M, and N line, the line N is intersect these two lines L and M. Okay, so intersect यहाँ पे हो रहा है and it will make the some angles. So angles are there, angle D, A, C, B, H, E, G, F. So these are the angles. When it transversal is intersect the two lines, it will form these some angles. Okay, so this is called as transversal. Okay, so this is the transversal and it form the angles, right? So these are the 8 angles, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 angles are formed. Okay, now what is mean that angles? These are called as a corresponding angles, alternate angles, interior angles, opposite angles. Okay, and also the opposite, interior, exterior angles also. So here pair of corresponding angles. So we have to fill the corresponding angles. Which are the corresponding angles? Here one is shown. They here angle D and angle D and angle H is the corresponding angles. So look at the diagram and look at the angles. So angle D and H. ओके देखो ये लाइन है, उसके ऊपर जो है सेम वाला, दैट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल डी एंड एच इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन के ऊपर एंगल. ठीक है, लाइन के नीचे भी हो सकता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ. एंगल डी एंड एच इज द करस्पॉन्डिंग एंगल. अगेन एंगल ए एंड एंगल ई. ओके, एंगल ए एंड एंगल ई. सो हियर इट इज एंगल ई. ओके, now next one is angle C and angle G. Angle C and angle G. So angle G is corresponding angle. Okay, angle B and angle F. Angle B and angle F. So these are the corresponding angles. Now what is next? What is mean by alternate interior? Interior मतलब ये जो दो लाइन है उसके बीच जो एंगल है उसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल. ये वाला है और ये वाला, दिस वन आल्सो इंटीरियर एंगल. सो दोनों लाइन के बीच के मतलब अंदर जो है बिटवीन द टू लाइन्स द एंगल्स आर फॉर्म. दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल. सो अल्टरनेट मीन्स व्हाट इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो हियर लुक एट हियर एंगल सी एंड ई. अल्टरनेट मतलब ऐसे क्रॉस में कौन सा है? एंगल सी एंड एंगल ई इज द इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगेन बी एंड एच आर दी alternate interior angle. Okay, so these are the alternate interior angle. Now alternate exterior मतलब ये दोनों लाइन के बाहर के. तो these are here D and F. These are the alternate exterior. Okay, alternate exterior, angle D, angle F, and here angle A and angle G. These are the alternate exterior angle. Okay, now next is pair of interior angles on same side. अभी पहले हमने क्या देखा था? pair of alternate interior angles. That is क्रॉस में जो है that is alternate interior angle. But इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स जो है
अंदर के जो पेयर ऑफ लाइन है, दिस वन इज द line, so it having some interior angles that is on same side मतलब C and H, angle C and H, these are on same side, so angle C and H and angle B and E. Okay, so these are the interior angles on same side of the transversal. Okay, some of the important points are there. When two line intersect, the pair of opposite angles form are congruent. When two line intersect मतलब अगर ये दो लाइन है, when they are intersect, pair of opposite angles मतलब समझो ये और ये वाला, ठीक है, या ये और ये वाला, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कौन सा भी अपोजिट हो सकता है, लेकिन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट, द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, मतलब क्या होता है, अभी आपको दिखाती हूँ फिर से एक बार थोड़ा सा लार्ज. तो ये डायग्राम है. ओके, सो इफ इट इज ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, समझ लो अगर ये 45 डिग्री तो ये भी कितना रहेगा, 45 डिग्री. सो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, दे आर इक्वल. अंडरस्टूड. सेकंड क्या है, द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. मतलब क्या है, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर. सो लीनियर पेयर एंगल्स आर फॉर्म. ये जो दो एंगल यहाँ पे एक की लाइन के ऊपर दो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो सप्लीमेंट्री, मतलब उनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री. ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर एक की लाइन के ऊपर जब होता है, दैट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री. ओके, यहां तक समझ में आया. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एंगल की, व्हेन वन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, अगर एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम अभी मैंने क्या बताया, अगर ये D है और ये वाला क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये वाला, ठीक है, तो ये और समझ लो C, D एंड C, ठीक है. सेम हियर, तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, समझ लो ये E है और F है. सो दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो दीज आर दी करस्पॉन्डिंग. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर समझ लो ये D जो है ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या रहेगा, C भी क्या रहेगा, 30 डिग्री. और जितने भी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. ये 30 रहेगा, ये भी 30 रहेगा, ये भी 30 रहेगा. सो ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, अगर एक पेयर अल्टरनेट एंगल का कॉन्ग्रुएंट रहता है तो सारे अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. यही प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है. और लीनियर पेयर के एंगल जो रहते हैं दैट इज सप्लीमेंट्री, मतलब उनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ये याद रखना है. व्हेन द वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड, ये अगर इंटीरियर एंगल से ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उसका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल, ये वाला या समझ लो ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है बराबर. ये इंटीरियर एंगल्स जो है ये क्या रहते हैं, अंदर की सप्लीमेंट्री. अगर एक सप्लीमेंट्री रहेगा तो दूसरा भी सप्लीमेंट्री ही रहेगा. ये आपको याद रखना है. उसका हम आगे देखते इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. तो हियर दैट इज द वन थ्योरम इज देयर, इंटीरियर एंगल थ्योरम. अभी हमने लास्ट जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा था व्हाट इज थ्योरम, व्हाट इज प्रूफ, और प्रूफ क्या करना होता है. सो देयर आर द टू प्रूफ्स, दैट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ओके, एक डायरेक्ट करना होता है, दूसरा इनडायरेक्ट करना होता है, दैट इज द कन्वर्स मे बी. सो हियर इंटीरियर एंगल थ्योरम, व्हाट इज मीन इंटीरियर एंगल थ्योरम. इंटीरियर मतलब अंदर के जो टू लाइन्स है, व्हेन द टू लाइन्स आर हियर, देयर आर टू लाइन्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीरियर मतलब अंदर के जो है उनका जो है सप्लीमेंट्री होते वो शो करना है. सो हियर थ्योरम, व्हाट इज द थ्योरम, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो ये प्रूफ करना है हमें. ओके,
तो ये आपको यहाँ समझ में आया, पैरेलल लाइन से उसके अंदर जो है, इसके अंदर के ये एडिशन जो है दैट इज सप्लीमेंट्री, मतलब वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना। अभी गिवन क्या दिया है, गिवन मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन होता है दैट इज योर गिवन, क्या दिया है, पैरेलल लाइन्स। ओके, सो मतलब L इज पैरेलल टू M और M इज पैरेलल टू N। ओके, सो गिवन दिया है L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज देयर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर है हमें पता है, ये गिवन ऑलरेडी दिया है, ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है दैट इज यू हैव टू प्रूफ, तो यू हैव टू प्रूव व्हाट, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑलरेडी दिया है, एंगल A, B, D एंड C, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ ये सब गिवन दिया है, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या करना है, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दैट एंगल्स विच फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल जो फॉर्म हुए because of the transversal, these are the supplementary, means angle A plus angle B is equal to 180 degree and angle D plus C is equal to 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अभी प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो प्रूफ पहले लिखने का कि हमें कौन सा एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल्स, तो लिखना है 3 possibilities of arising regarding sum of measures। सो एंगल A दिया है, एंगल B दिया है, राइट, एंगल A एंगल B दिया है, ये में भी, इट में भी एंगल A प्लस B इज ग्रेटर देन लेस देन 180 डिग्री, ये लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, और या इज इक्वल टू भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज, इसको लेके हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इसमें जो दिया है यूक्लिड पोस्टुलेट्स, अभी उसने क्या कहा, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल A प्लस B या एंगल D प्लस C क्या है, 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। सो लेट अस सपोज, पहला हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि जो ग्रेटर है, यहाँ पे फर्स्ट दिया है, बट लाइन L एंड M आर पैरेलल, अगर कोई भी अगर पैरेलल रहता है तो इट इज नॉट पॉसिबल लेस देन दी 180 डिग्री, दोनों के अगर पैरेलल लाइंस रहेंगे तो लेस देन 180 डिग्री कभी नहीं रहता है, तो ये कट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला पॉसिबिलिटीज क्या था, A प्लस B मे बी ग्रेटर देन दी 180 डिग्री, 180 डिग्री की ग्रेटर हो सकता है, तो एंगल A प्लस B इज ग्रेटर देन दी 180 डिग्री। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी। अभी ये हमने लिखा है, अगर अभी हमें पता है अगर ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो उसका भी ए भी अल्टरनेट एंगल है। कौन सा अल्टरनेट एंगल है, डी प्लस बी एंगल इज अल्टरनेट एंगल, सी एंड ए इज अल्टरनेट एंगल, ओके, एंड दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमें पता है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। सो हियर दैट रिटर्न की सप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला ए है और ये वाला डी है, दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल। ए की लाइन के ऊपर रहता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स इन लीनियर पेयर कहते हैं। एंगल्स इन लीनियर पेयर जो होता है दीज आर द सप्लीमेंट्री, मीन्स दैट इज द 180 डिग्री। सो एंगल ए एंड एंगल बी, पहले तो ये क्या हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी, लेकिन हमें पता है ये सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर एंगल है, ये वाला एंगल ए एंड एंगल डी दीज आर द लीनियर पेयर एंगल। सो एंगल्स इन लीनियर पेयर है तो ए प्लस डी जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट वी नो दैट अगेन ये भी एंगल्स इन लीनियर पेयर सी, दिस वन ऑल्सो बी एंड प्लस सी इज ऑल्सो linear pair angle, so angle C plus B is also linear pair angle, so these are also supplementary, ये हमें पता है। तो अगर हमें ये पता है, अगर A is equal to D है और C is equal to B है तो हमें पूरा एडिशन करना होगा उसका, तो इसीलिए हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180, ये दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिला 180 प्लस 180 मतलब 360, ओके, 360 मिल गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 360 फिर ये जो C और D था, C और D इस तरफ रखा है और A प्लस B इस तरफ, 360 माइनस A प्लस B अगर हमने किया, लेकिन A प्लस B हमें पता है क्या है, A प्लस B इट में भी 180 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से 180 गया तो क्या होता है 180, मतलब ये वाला जो है C प्लस D,
सी प्लस डी जो है एंगल सी प्लस डी दैट इज द 180 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पे दिया है इट ग्रेटर देन 360 माइनस इट में बी लेस देन दी 180 डिग्री। तो C प्लस डी इज इक्वल टू इज लेस देन दी 180 डिग्री। ये यहाँ पे जो प्रूफ किया है वो आगे दिया है। अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये आपको दिया है, अगर ये ऐसा होता है इन केस ऑफ लाइन L and M प्रोड्यूस विल इंटरसेक्ट ईच अदर on same side of transversal where angle C and D are formed. So angle C and D is less than 180 degree। ये possible तो नहीं है, less than हो ही नहीं सकता है। So it is greater than the 180 degree, ये भी नहीं हो सकता है, दोनों भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि angle A plus B is equal to 180 degree and angle C plus D is also 180 डिग्री। ये एक्चुअली प्रूफ करना है, सिर्फ हमें इसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं और उनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। ये याद रखो। टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है इंटीरियर एंगल्स का जो होता है दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। एंड द लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स रहते हैं दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री, उनका भी जो होता है 180 डिग्री होता है, एडिशन 180 डिग्री होता है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, उसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये जो होता है ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्या, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये याद रखना है। यहाँ पे जो एक थ्योरम दिया है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल मेजर्स। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल ए एंड बी, दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको ये भी करना है एंगल सी, यहाँ पे पुट अप दी वैल्यूज डी, सो एंगल सी एंड डी दीज आर दी करस्पॉन्डिंग। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते दे आर इन इक्वल मेजर्स, दोनों का एंगल इक्वल होता है। मतलब A इज इक्वल टू बी, C इज इक्वल टू डी। ओके, तो यहाँ पे दिया है एंगल A, हमें प्रूफ क्या करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। पहले तो हमें पता है जो इंटीरियर एंगल्स रहता है या एंगल्स इन लीनियर पे रहता है। अभी देखो ये लाइन अगर ली तो ये एंगल्स इन लीनियर पेयर A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑल्सो देयर। तो वहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल प्लस BC। ये इंटीरियर एंगल जो होता है उनका भी एडिशन 180 डिग्री होता है और लीनियर पेयर के ऊपर होता है उसका भी एडिशन क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो A प्लस C दिस इज द एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो यहाँ पे लिखा एंगल्स इन लीनियर पेयर। सेकंड वाला प्रॉपर्टी B प्लस C मतलब इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट्स व्हाई एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे दिया है दोनों को एक या आगे सामने सामने रखा A प्लस B, A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C कट हुआ तो A प्लस B। ओके, तो A प्लस B हुआ। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये अगर कट होता है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आता है दूसरा वाला थ्योरम, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल मेजर्स। अगर अल्टरनेट एंगल रहेंगे उनका भी जो वैल्यू होता है इक्वल मेजर्स रहता है। अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो इसमें भी वही सेम आप करो। ये जो है लीनियर पेयर एंगल है, ओके, तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंड ऑल्सो दिस इज द इंटीरियर एंगल, सो एंगल C प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C सामने सामने रखो तो C कट हो जाएगा, सो एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू बराबर, तो बोथ आर सेम। ओके, सो वैल्यू इज इक्वल हियर। तो ये उसमें ये प्रॉपर्टी आती है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में से अच्छे से करना है। ओके, उसके बाद आता है ये सिर्फ आपको क्या करना है इम्पोर्टेंट, इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स हैविंग इक्वल मेजर्स, इतना ही याद रखो अच्छे से। ओके, तो ये सब है आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेट पॉइंट 2.1 इज इम्पोर्टेंट।
Okay, we have to solve some examples. So practice set 1.1. There is a one first question is there in a figure 2.5. ये 2.5 figure दिए. Line RP. This is the line RP is parallel to SM. Okay, SM is there now and the line DK is the transversal. ये तो हमें पता है. Angle DHP कौन सा? DHP is 85 डिग्री. ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल दिस वन. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मैं इसको आपको लिख के दिखाती हूँ. वे टू सॉल्व. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड आउट दी RHD angle RHD PHG and angle HGS and angle MGK. Okay, so first हम पहले सॉल्व करते. जो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता है DHP. अगर हम DHP करते हैं, अभी देखो ये वाला अगर आप देखोगे इसमें DHP ये लाइन जो है दिस इज द एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो टू एंगल्स आर फॉर्म. दिस इज द लीनियर पेयर एंगल. कौन सा DHR एंड DHP. अगर हम ऐसा करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो DHP प्लस RHD. तो अगर हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट सोल्यूशन हम करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द practice set 2.1. okay, so here first question is to find out the RHD. okay, हमें क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, एंगल DHP दिया है, दैट इज द 85 डिग्री. 85 डिग्री दिया है, राइट. 85 डिग्री दिया है. उसके बाद हमें क्या दिया है, हाँ, तो RHD अगर आपको निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, DHP हमें पता है कि एंगल RHD प्लस एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री. तो इसको अगर रीजन हमें लिखना है तो लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर. ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इतना हम लिखेंगे. उसके बाद फिर आता है, अगर अभी पुट अप द वैल्यूज, वी नो दी DHP इज 85 डिग्री सेल्सियस. सॉरी, सेल्सियस नहीं, 85 डिग्री. सॉरी, साइंस का लैंग्वेज मैंने यूज कर लिया, लेकिन 85 डिग्री. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना RHD. सो RHD प्लस एंगल कितना है, 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 85 को इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा. सो एंगल RHD इज इक्वल टू 180 माइनस 85, तो कितना आता है, सो दिस इज द 95 डिग्री. ओके, सो हमें मिल गया एंगल RHD. ओके, नाउ सेकंड वन, व्हाट वी हैव टू फाइंड, सेकंड इज PHG. ओके, PHG अगर हमें फाइंड आउट करना है, देखो अभी आप देखोगे PH और G. PHG मतलब ये इंटीरियर एंगल है, राइट. इंटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले तो इंटीरियर एंगल जो है, अब ये अपोजिट एंगल भी है तो अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये PHG जो है, दिस वन अपोजिट टू एंगल RHD. जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल RHD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PHG. Why? Because these are the opposite angles. Okay, so these are the opposite angles which are congruent. तो RHD अपना कितना है, 85 डिग्री, राइट. सो RHD is 85. That's why PHG also 80. सॉरी, RHD अपना कितना था, 95 था. सॉरी, 95 था. सो अगर RHD 95 है तो PHG भी कितना आएगा,
95. So angle PHG is equal to 95 because opposite angles are there. Okay. So ये अपना सेकंड हो गया. उसके बाद थर्ड आता है. थर्ड क्या आएगा? HGS. HGS. अभी आपने फाइंड आउट कर लिया PHG. PHG हमें पता है. ओके. PHG हमें पता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? HGS. अभी अगर हमें HGS निकाल तो हम क्या बोलते हैं? DHP is congruent to HGS. DHP and HGS are congruent. Why? Because corresponding angles are there. अगर हम करते, समझ लो, ये वाला एंगल कौन सा वाला? HGS. हमें फाइंड आउट करना है एंगल HGS. HGS फाइंड आउट करना है तो HGS कैसे आएगा? HGS is congruent to DHP is congruent to DHP. ओके. अभी DHP ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज द 85 डिग्री. सो देयरफॉर HGS also 85 डिग्री. यहाँ पे आप देखो, बिकॉज ऑफ corresponding angles. ओके. ऐसे भी लिख सकते, corresponding angles are congruent. That's why angle HGS is 85 डिग्री. और एक आप अगर आपको करना है तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हो. समझ लो HGS है और HGS है, HGS. और दूसरा वाला हमने कौन सा फाइंड आउट किया था? PHG. अगर समझो हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल PH कौन सा? PHG प्लस एंगल HGS इज इक्वल टू 180 डिग्री किया, समझो. ठीक है. उसके बाद PHG हमें पता है, PHG कितना है? 95 डिग्री प्लस HGS हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. बराबर. तो हम क्या करेंगे? एंगल HGS यहाँ पे आप लिख लेना कि these are what? These are the interior angles. Interior angles are supplementary. ओके. ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है. तो आप अच्छे से इसको लिखने ने कहा कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है या नहीं, ये वो सब आपको देखना ही है. ठीक है. तो these angles are supplementary. Supplementary. Okay. So angles. So 180 degree is minus is 95. 95 हुआ तो कितना आंसर आएगा? दिस इज 85 डिग्री. तो ये दोनों तरफ से आप कर सकते हो. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिखाना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाओ, या आपको सप्लीमेंट्री अगर आपको देखना है इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री, उसके हिसाब से भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट फोर्थ इज व्हाट? एंगल MGK. कौन सा फाइंड आउट करना है? एंगल MGK. अभी एंगल MGK मतलब कौन सा? एंगल MGK. एंगल MGK अपोजिट टू द HGS, राइट. अभी जो एंगल MGK है is congruent to angle HGS. Why? Because opposite angles both are the opposite angles. Okay, both are the opposite angles. So MGK is also what? HGS की वैल्यू क्या थी? 85 थी ना. इसीलिए फिर हम क्या करेंगे? अगर ये 85 तो वो भी 85 होगा. इसीलिए एंगल MGK इज ऑल्सो 85. और एक आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो. अगर MGK क्या हुआ? ये वाला, ये बाहर का एंगल है. ठीक है. ये कौन सा एंगल है? दीज आर ऑल्सो एक्सटेरियर एंगल. एक्सटेरियर एंगल्स मतलब ये और ये कौन सा? DHP एंड MGK आर द एक्सटेरियर एंगल्स, बाहर के एंगल्स, राइट. तो दोनों लाइन के बाहर के एंगल्स जो रहते हैं, दैट इज द ऑल्सो एक्सटेरियर एंगल्स. सो अगर आपको लिखना है, और एक दूसरा वाला तरीका मैं बताती हूँ. MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा? किसको कॉन्ग्रुएंट टू DHP. ठीक है. इसको लिख लो. क्या लिखोगे? कि अल्टरनेट
अल्टरनेट, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल्स। दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सो दिस इज द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो DHP हमें पता है, DHP कितना है, 85 डिग्री है। तो इसीलिए MGK भी क्या रहेगा, MGK इज ऑल्सो 85 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लेट अस सॉल्व द फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर 2.6 P, जो P है, P कौन सा है, ये वाला P, line P is parallel to what, line P is parallel to line Q and line L is and M are the transfer, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है। मेजर द सम एंगल्स आर शोन इन फिगर। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल अगर ट्रांसवर्सल निकाल, ये ऐसा ट्रांसवर्सल है, इसको आपको उल्टा करना क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, ABCD, एंगल A और B और C और D। इसमें आपको सिंपल सा है, देखो ये लाइन है, दीज आर दी, ये और ये, दीज आर दी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये वाला अगर आप देखते हो और ये लाइन अगर देखते हो तो यहाँ पे पहले 110 ऑलरेडी दिया है, ठीक है, 110 ऑलरेडी दिया है। अभी आपको पता है ये लाइन क्या है, लीनियर पेयर है। ये लाइन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर फॉर्म, एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो लीनियर पेयर के ऊपर ही, मतलब ये लाइन के में जो एंगल्स आएंगे वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी और एक यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे दिया है ये वाला 110, ये लीनियर पेयर एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अभी ये आपको फाइंड आउट करना है, आपको अगर देना है तो दूसरे आप इसमें दे सकते हो, उसका ABCD करके या EF करके इसको नंबर दे सकते हैं। समझ लो हमने यहाँ पे E दिया और यहाँ पे F दिया, ठीक है, और ऑलरेडी हमें यहाँ 110 एक ही एंगल यहाँ पे दिया है, राइट। तो लेकिन हमें E और F हम निकाल सकते, कैसे निकाल, ये और ये अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 ही है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर ये हमें निकालना है तो लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से अगर ये F समझ लो, इसको हम F मानते, तो फिर 110 अगर हम इसको सप्लीमेंट्री मानेंगे, ये जो है एंगल ये वाला, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स है इसके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फिर ये वाला, ये ए कौन सा है, अगर हम ऐसे देखेंगे इसको तो ये वाला ए है, राइट, ये वाला ए है, और ये नीचे वाला क्या है, 110। ओके, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर जब एंगल रहते, दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स है। सो अगर हम जो 110 है उसको अगर हम ए और यहाँ पे समझो हम देते के, ठीक है, 110 एंगल का मैंने के दिया, एक ही लाइन के ऊपर जो होता है दैट इज द लीनियर पेयर एंगल्स। सो एंगल जो है लीनियर पेयर हो रहा है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल के तो 110 दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर व्हाट, एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 110। तो एंगल ए कितना हुआ, एंगल ए कितना हुआ, दैट इज द 70 डिग्री। ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा है क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या आता है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया अगर हमने उसको ये लिया तो लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी। अभी हमें अगर एंगल बी फाइंड आउट करना है, अगर हमने देखा, देखो ए और बी ये जो है
एक्सटेरियर अपोजिट एंगल्स है, बराबर। एक्सटेरियर एंगल्स है, दीज आर द एक्सटेरियर एंगल्स। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी, तो यहाँ पे लिखो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। हम यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल्स। ओके, एक्सटेरियर एंगल्स, तो एंगल ए जितना रहेगा उतना ही एंगल बी रहेगा। दैट्स वाई एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, याद रखना, ठीक है। दैट्स वाई एंगल बी इज ऑल्सो 70 डिग्री। नाउ नेक्स्ट we have to find out the next. Now angle C, third is angle C. अभी आपको एंगल C देखना है। एंगल C क्या है? एंगल C is where this one is angle C. अगर आप देखोगे, देखो एंगल A एंड एंगल B, अगर ऐसी इसके हिसाब से देखते हो तो ये इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे। इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ओके। इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री रहते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। एंगल सी और एंगल डी, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे 115 है, ओके। ये अगर हमने देखा यहाँ पे 115 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। सो दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये और एंगल, ये सी एंगल, और अगर हमने इसको दिया, इसको हम P देते हैं, तो एंगल P एंड एंगल C आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिकॉज ऑफ दिस हमें क्या आंसर मिलेगा वहां पे? अगर हमने लिखा एंगल C एंड एंगल PE, दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते, एंगल C एंड एंगल P आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सो एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री, ओके। ये उसका आ गया। अगर एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो और एक बात आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दीज आर दी एंगल्स इन लीनियर पेयर। कौन सा एंगल D एंड एंगल P, मैंने इसको P नाम दिया है। तो एंगल P एंड एंगल D आर दी कौन से एंगल? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर दी व्हाट? दीज आर दी क्या बोलेंगे हम? एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। अगर हम इसको एंगल्स इन लीनियर पेयर कहते हैं तो एंगल P तो हमें पता है 115 डिग्री, राइट, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो 150 इस तरफ गया तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 150, सो एंगल D इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर? दैट इज द 65 डिग्री, ओके। तो हमें लास्ट में जो मिला है दैट इज द, हमें लास्ट में क्या मिला है? दैट इज द एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C हमें कितना मिला? 115 डिग्री, और एंगल D इज इक्वल टू 65 डिग्री, ओके। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे हो गए यहाँ पे अच्छे से, ओके। तो ये आपको लिखना है आपके क्लास वर्क के नोटबुक में। उसके बाद फिर आप अगर होमवर्क आपका कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम वैसे ही आपको अच्छे से करना है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, ओके, ठीक है। उतना आप कर लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड बाकी के जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पढ़ाऊंगी, ओके। तो ये बात करना है। मुझे लगता है इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम सेट है, 2.1 एंड 2.2, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से करना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है।
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी की प्रॉपर्टीज और 2.2 खत्म करेंगे। ठीक है, उतना हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच।